elongation of wire in the liquid. मान के चलो मेरे पास एक वायर है ऐसा कुछ, it is fixed here. Small weight is attached to this one, ऐसा कुछ. ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? एरिया ऑफ दिस वायर इज पाई into your r square. Weight of this body is m. M into g is acting in the downward direction. Tension in the string is T. This one is also your T. So mass will be equal to volume into density. Volume of the body is 4 by 3 pi into your capital R cube into rho. This is your mass. So it is in air. When wire is in air, elongation in air will be equal to mg into your L divided by your A into your Y. The length of the wire मान के चलो अपने पास L है इस तरह से. ठीक है. When the wire is immersed in water, when wire is immersed in a liquid, it can be anything better, then elongation in your liquid is equals to m into g effective into your L divided by your A into your Y. G effective, what happens better when it is immersed in the wire? G effective will be, because of the Bion force, G effective will be equal to G into 1 minus density of liquid divided by density of your solid. Okay? Therefore, elongation in your liquid will be equal to your m into G effective will be equal to your G into. Excuse me, sir. हाँ बेटा, हाँ सर. सर थोड़ी देर के लिए ऑडियो स्टॉप हो गया था, थोड़ा रिपीट करेंगे सर, एक 10 मिनट्स प्लीज. एक्सप्लेन कीजिए बस. हाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन कीजिए सर बस. हाँ ठीक है. देखो बेटा, elongation नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टुडेस. इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 5 में हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, elongation ऑफ ए वायर इन ए लिक्विड. elongation ऑफ ए वायर इन ए लिक्विड. मेरे पास एक वायर है बेटा, यहाँ पर देखो ये वाला एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना पाई इंटू योर आर स्क्वायर है. इट इज बीन अटैच्ड विद ए ब्लॉक ऑफ मास ऑफ योर m. इट इज बीन अटैच्ड विद द ब्लॉक ऑफ मास ऑफ योर हाउ मच बेटा m. Weight of the body is acting in the downward direction, so force in the wire is acting in the upward direction. तो mass of the body कैसे ले सकता हूँ मैं बेटा? Mass is equal to volume into density. Volume of this spherical body will be equal to how much for me? 4 by 3 pi into your r cube, जो weight अपन ने attach किया हुआ है. So when the wire is in the air, elongation in the wire कैसे लिखते हो बेटा? mg into your L divided by A into Y. ये आया ना किसी को? How do you write this one? किसी को याद है ये? Young's modulus से लिखते थे हम लोग को. Young's modulus is equals to force by your area divided by your change in length, elongation by your original length. So it is equals to your F into your L divided by A into E बोल के लिखते थे. ये E इधर चले जाएगा तो F into your L. F is nothing but your mg. तो ये हो जाएगा मेरे पास mg into your L divided by A into elongation. याद आया? Yes sir. Then when the wire is immersed in the liquid, when the wire is immersed in the liquid, तो उस लिक्विड के ऊपर whenever a body is been, जैसे मान के चलो फुटबॉल है, फुटबॉल लेके अगर हम लोग वाटर में इमर्स करेंगे तो बायन फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है ना बेटा, है कि नहीं? तो उसके वजह से जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जा रही है? आपने फ्लूइड्स में पढ़ा होगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी इनटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड. रो एल इज इक्वल्स टू योर डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड है एंड रो एस इज इक्वल्स टू योर डेंसिटी ऑफ योर सॉलिड है. जो भी सॉलिड मेटल ले रहे हैं, ये वाला ये मेरा सॉलिड है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? जी इफेक्टिव की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? जी इफेक्टिव की जगह जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू योर एल डिवाइडेड बाय ए इंटू योर वाई. अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, elongation in your liquid is equals to mg into your capital L divided by A into Y into 1 minus density of liquid divided by density of solid.
इसको देखो बराबर mg इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई किसके बराबर है, किसके बराबर है, ऊपर वाला mg इंटू एल डिवाइडेड बाई ई इंटू योर ए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, elongation in the liquid, elongation in your liquid is equals to elongation in your air into 1 minus density of liquid divided by density of solid। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है अपने को, ज्यादा अपने को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर एलोंगिएशन इन कोई मीडियम पूछा तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, एलोंगिएशन ऑफ दैट वायर विल बी इक्वल टू एलोंगिएशन ऑफ द वायर इन द एयर मल्टीप्लाइड विथ योर 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड दे रहा है उस लिक्विड का डेंसिटी ले लेना है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जो भी बॉडी दे रखा है उस बॉडी का डेंसिटी ले लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अब इसमें बताओ कौन ज्यादा कौन कम होगा, ऑब्वियसली elongation in your liquid will be lesser than the elongation in your air, elongation in the liquid is lesser than the elongation in the air। ये पॉइंट अपने को पूछता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ इलेक्शन। क्लियर है सभी को, एनी डाउट इन दिस वन टू एनीवन, एक बार देख लो जल्दी से। when wire is immersed in the water, when wire is in your air, elongation in the air is mg into L divided by A into Y. When the wire is immersed in liquid, elongation in the liquid will be equal to m into acceleration due to gravity of effective acceleration due to gravity into the length capital L divided by A into Y. तो g effective कितना होता है बेटा इन द लिक्विड, g into 1 minus density of liquid by density of solid। ये अपने को बयान से कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, आप लोग को हो गया होगा ऑलरेडी, बेसिकली देख लो एक बार। तो वैल्यू यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो elongation in the liquid is equal to mg into L divided by A into Y into 1 minus density of liquid by density of solid। mg into L by A क्या है बेटा, डेंसिटी, elongation एयर है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। elongation in the liquid is equals to elongation in the air into 1 minus density of liquid divided by density of solid, and elongation of the liquid कभी भी lesser than होता है elongation in the air। क्लियर है, इज इट क्लियर? ये एप्लीकेशन नंबर 1 था, ठीक है चलो सेकेंड वन देख लेते हैं। सी फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा नीट के लिए, फॉर ए गिवन वायर, फॉर ए गिवन वायर, फॉर ए गिवन वायर सब मटेरियल मान के चलो, force will always be directly proportional to, force is directly proportional to extension। यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है बेटा, अगर बहुत ज्यादा मोटा वाला मटेरियल है, अच्छा वाला क्वालिटी है, तो उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, elongation इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर डुप्लीकेट मटेरियल है तो उसको आराम से खींच सकते हैं। तो फोर्स जो डिपेंड करता है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी फॉर ए गिवन वायर ऑफ मटेरियल, फॉर ए गिवन वायर ऑफ मटेरियल ऑफ योर मटेरियल, force is directly proportional to your delta L यानी elongation, because उस मटेरियल का y, area of cross section NL are remaining for me same। अगर ये तीनों भी सेम है तो I can write here F divided by your delta L is equals to your constant। ठीक है ना, so I can write here right now F1 divided by your delta L1 is equals to your F2 divided by your delta L2। So this is your F1 divided by delta L1 is equals to your F2 divided by delta L2। Clear है? For a given material of a wire, force divided by your extension is always for me constant। very important relation बेटा। एग्जाम्पल देखे दे रहा हूँ, देखो एक बार एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। इस पे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं जैसा मैं अभी आप लोग को दे रहा हूँ बेसिकली। मान के चलो फॉर ए गिवन लेंथ, फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ L1, फॉर ए गिवन लेंथ गिवन लेंथ इज मान के चलो L1 है, फॉर लोड मान के चलो F1 है, ओके, एंड फॉर लेंथ L2 फॉर लोड F2। ठीक है ना, तो अब इसको फाइंड करो
L0। यानी मेरे पास एक वायर है बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम को। ये एक वायर है मेरे पास, इसका ओरिजिनल लेंथ जो है ना L0 है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस वायर को कुछ फोर्स से खींचा मैंने, कुछ फोर्स से खींचा। कितने फोर्स से खींचा? F1 से खींचा मैंने। इसका F1 का लोड है, तो इसमें एलोंगेशन कितना आया? L1 आया। उसके बाद फिर मैंने वही वायर को क्या किया, सेम F2 के फोर्स से थोड़ा खींचा मैंने, सेम वायर को। अब मैंने फोर्स लगाया F2, तो जब मुझे पता चला एक्सटेंशन इसके अंदर कितना था, न्यू लेंथ कितना है? L2। तो इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है ये पूछ रहा है। पर गिवन लेंथ इज L1 फॉर ए लोड F1। अगर F1 लोड की वजह से लेंथ L1 है और F2 लोड की वजह से अगर लेंथ L2 है, तो उसकी लेंथ L0 क्या हो जाएगी? तो मैंने अभी यहाँ पर बताया, फॉर ए गिवन लेंथ, फॉर ए गिवन वायर ऑफ ए मटेरियल, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी F बाई डेल्टा L विल बी अ कांस्टेंट। फोर्स कितना लगा रहे हैं अपन यहाँ पर बेटा? L1 लगा रहे हैं, सो इट इज योर F1 डिवाइडेड बाई, इसमें एक्सटेंशन कितना होगा बेटा? L1 इज ग्रेटर देन L2, तो फर्स्ट वन के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं? L1 माइनस ऑफ योर L2 लिख लूँ, दैट इज इक्वल्स टू योर F2 डिवाइडेड बाई योर L2 माइनस ऑफ योर L0 लिख लेता हूँ। दैट विल गिव मी द एक्सटेंशन ना बेटा। अब देखो इस वायर का मुझे, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का एक्सटेंशन चाहिए, इसका ये तो एक्सटेंशन होगा ना, तो इसका डेल्टा एल कितना हो जाएगा बेटा? L1 माइनस ऑफ योर L0 होगा। और इस वायर का अगर मैं एक्सटेंशन पूछूं, यहाँ से यहाँ तक का अगर इसका एक्सटेंशन पूछूं, तो ये इसका एक्सटेंशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक L2 माइनस ऑफ योर L0। ठीक है ना? प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? L1 के लिए F1 और L2 के लिए F2 है। तो अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये हो जाएगा मेरे पास F1 इंटू L2 माइनस L0 इज इक्वल्स टू योर F2 इंटू योर L1 माइनस ऑफ योर L0। तो ये बन गया मेरे पास F1 इंटू L2 माइनस F1 इंटू योर L0 इज इक्वल्स टू F2 इंटू योर L1 माइनस F2 इंटू योर L0। पूरे L0 के टर्म्स को एक जगह ले लो और बाकी के टर्म को एक जगह ले लो, तो ये बन जाएगा मेरे पास F1 L2, ये माइनस है तो ये प्लस है ना बेटा, प्लस है तो इधर आ जाएगा। तो अगर ये इधर आ गया तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ योर F2 इंटू योर L1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर F2 इंटू योर L0 प्लस ऑफ योर F1 इंटू योर L0 लिख सकता हूँ ऐसा। इज इट क्लियर? इज इट? ये माइनस टर्म अगर निकालना है तो क्या मैं इसको फ्लिप कर दूं यहाँ पर? तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर F2 इंटू योर L1 माइनस ऑफ F1 इंटू योर L2 फ्लिप कर दिया, तो डेट विल बी इक्वल टू योर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ F1, ये माइनस साइन चले जाएगा यहाँ पर बेसिकली, तो यहाँ पर F1 प्लस ऑफ योर F2 कॉमन हो जाएगा और इसका ओरिजिनल लेंथ बन जाएगा L0। तो L0 की वैल्यू कितनी बन गई बेटा? L0 विल बी इक्वल टू योर F2 इंटू योर L1 minus of your F1 into your L2 divided by your F1 plus of your F2. So this is your original length in terms of your L1, L2 and in terms of your applied force. Very important shortcut formula to do the problems और बहुत बार as it is पूछा गया हुआ ये question, तो इसको इसी तरह से याद रख लो, एक से दो बार करो, it will be helpful for your NEET examination. NEET के लिए बहुत ही ज्यादा important है बेटा. So it is very important for even NEET. ठीक है? For a given material or for a given wire of a material, force is directly proportional to your extension or F by delta L is equals to constant. ये फॉर्मूला अपने को याद रखना. So for a given wire, the length is मान के चलो L1 है. For the given wire L1 के लिए load F1 है, L2 के लिए load F2 है. Find the value of your L0 is telling. Initial length of the wire मान के चलो L0 है. After applying the force of F1, the length is becoming L1. After increasing the force from F1 to F2, the length is becoming for me L2. So extension in the first wire will be equal to your L1 minus L0 and extension in the second wire will be equal to, यानी यहाँ से यहाँ तक की extension लेना है ना original wire से, तो ये इसका हो जाएगा L2 minus of your L0. तो F1 by delta L1 is equals to your, यहाँ पर कितना होना चाहिए? delta L1 है, ये delta L2 है मान को चलो. So it is your F1 divided by delta L1 is equals to your F2 divided by delta L2. तो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यूज लिखा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लिया, गॉट द आंसर फॉर इट. बात समझ में आई बात समझ में? चलो एक अच्छा वाला और क्वेश्चन कर लेता हूँ और एक एग्जांपल दे देता हूँ. देखो अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. फॉर ए गिवन वायर लेंथ बिकम्स L1 अगर मैं 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं,
L2 अगर मैं फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा हूं, और L3 if I'm applying the force of 9. Okay, so for me is find L3 in terms of L1 and L2. This is your question. क्वेश्चन समझो पहली बार, अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ो। जब मैंने फोर्स 4 न्यूटन लगाया तो लेंथ L1 था, जब मैंने फोर्स 5 न्यूटन लगाया तो L2 बन गया, और जब मैंने फोर्स L3 लगाया तो फोर्स लेंथ कितना बन गया? L3। यानी वायर ऐसा कुछ हुआ होगा बेसिकली। यहाँ पर देखो, ये पहला वाला वायर था ऐसा कुछ, फिर उसके बाद ये वाला वायर आया होगा थोड़ा कुछ ऐसा, उसके बाद फिर ऐसा वाला सिचुएशन आया होगा कहीं कुछ, और उसके बाद फाइनली ये वाला सिचुएशन आया होगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा मोटा था, इसका लेंथ कितना था? L0। उसके बाद आपने फोर्स लगाया कितना, देखो इस पे जब मैंने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, फिर उसके बाद लगाया मैंने 5 न्यूटन, फिर उसके बाद फाइनली लगाया मैंने वही वायर पे 9 न्यूटन। तो मुझे पता चला कि इसमें लेंथ आ रहा था L1, इसमें लेंथ आ रहा था L2, इसमें लेंथ आ रहा था L3। यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर एक्सटेंशन ले रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का इसका एक्सटेंशन ले रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का इसका ये एक्सटेंशन हो जाएगा। चलो बताओ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू L1 माइनस L0 लिखोगे। ये हो जाएगा डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू योर L2 माइनस L0 होगा, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा L3 एक्सटेंशन, so that will be equal to your L3 minus of your L0 होगा। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहाँ तक? चलो, यहाँ से वायर फिक्स ऐसा ही था। अब इसको करो जल्दी। जब मैंने फोर्स 4 न्यूटन लगाया तो इसमें एक्सटेंशन कितना था बेटा? डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू 5 बाई डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू 9 बाई डेल्टा L3। सो ये बन गया मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी है बेटा? L1 माइनस ऑफ L0 है, isn't it? That is equals to 5 divided by L2 minus of L0 है, उसके बाद 9 divided by L3 minus L0 है, isn't it? सो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो इससे अगर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों को, तो ये बन गया मेरे पास 4 इंटू L2 माइनस ऑफ योर L0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू L1 माइनस ऑफ योर L0। तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सिंप्लीफाई कर लो इसको। 4 टाइम्स ऑफ योर L2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ L0 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ L1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ L0। ठीक है, सो दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी बेटा? 4 टाइम्स ऑफ योर L2 minus this will be 5 times of your L1 is equals to minus of 5 L0 plus 4 times of L0। ठीक है, अगर माइनस निकाल दूं इसको तो ये कितना बनेगा? देखो बेटा राइट नाउ जल्दी से, 4 L2 में से ये बन जाएगा मेरे पास 5 टाइम्स ऑफ L1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा बेटा? करेक्ट किया है कैलकुलेशन मैंने? 4 into your L2 minus 4 into your L0 is equals to 5 into L1 minus minus of this one। तो 4L2 ये क्या था? L1 तो पॉजिटिव इधर आ गया, माइनस ऑफ 5L0, ये माइनस था तो इधर चले गया। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है कहीं, देखो आप लोग। L0 की वैल्यू निकालना है मुझे, L0 की वैल्यू निकालना है। कितनी आ रही देखो एक बार? 4L2 minus 4L0 is equals to 5 times of your L1 minus 5 times of your L0। ये माइनस है, ये वाले को मैं अगर इधर ला लूं सीधा सीधा, और ये वाले को मैं इधर लेके चले जाऊं सीधा सीधा,
चलो ये ले लेके जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आई कैन ब्रिंग दैट वन हियर। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ योर एल नॉट माइनस 4 टाइम्स ऑफ एल नॉट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ L1 minus 4 times of L2. 5 minus 4, that will become for me L naught. L naught is equals to 5 times of L1 minus 4 times of L2. ये आ गया मेरे पास L naught की वैल्यू। L naught की वैल्यू आ गई कितनी, 5 टाइम्स ऑफ L1 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ L2। आई बात समझ में सभी को? ये आया मेरे पास ओरिजिनल लेंथ, लेकिन मेरे को ओरिजिनल लेंथ नहीं पूछा प्रॉब्लम में, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा क्या प्रॉब्लम में, देखो मेरे पास फाइंड द L3 इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2। ओके, L3 चाहिए, तो मुझे पास L3 की रिलेशन भी है, तो यहाँ पर देखो बेटा इससे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी अब क्या करो, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम्स ऑफ L3, तो देखो यहाँ पर 5 by over L2 minus of L naught is equals to 9 divided by L3 minus of L naught। तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ योर L3 माइनस ऑफ L naught is equals to 9 into L2 minus of L naught। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 into your L3 minus 5 into your L naught is equals to 9 into L2 minus 9 into your L naught। ठीक है, 5 into your L3 will be equal to how much बेटा, 5 into your L3 will be equal to your, ये हो जाएगा 5 into your L3 is equals to 9 into your L2 minus 9 into your L naught plus 5 into your L naught। तो ये बन जाएगा मेरे पास 9 into your L2 minus this will become for me 4 times of your L naught minus 9 plus 4। ठीक है ना, आई बात समझ में? So I can write this one as 5 times of your L3 is equals to 9 times of your L2 minus 4 times of L naught। L naught की वैल्यू लेकर किसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, I got the value of L naught, substitute in this one, so that will become for me 5 times of your L1 minus 4 times of your L2। तो ये बन जाएगा 9 into your L2 minus 5 4 is 20, 20 times of L1 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो ये प्लस 4 4 is 16 times of L2। ये हो गया मेरे पास L3। ठीक है, क्लियर है बेटा? और कैसा हो जाएगा, देखो जल्दी से, ये 9L2 है और ये 16L2, ये कितना हो जाएगा, कितना कितना 25 माइनस 20 टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, तो 5 टेबल में तो जाएगा ये, 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा, तो कितना बन जाएगा बेटा, L3 is equals to 5 times of your L2 minus 4 times of L1। तो ये आ गया L3 in terms of your L1 and L2, ये अपना आंसर। क्लियर है? ऐसे वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार कॉम्पिटिटिव ट्रैक में पूछा गया हुआ है, तो थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, यू कैन डू सच टाइप ऑफ। आपको समझाने के लिए मुझे डिटेल कैलकुलेशंस करना पड़ा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सो मेनी स्टेप्स व्हिच यू कैन लीव इट आउट, उसको आप ओरल करके भी निकाल दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है बेटा? चलो पॉइंट नंबर 3, within elastic limit within elastic limit सुन रहे हो पर एक ही जने है लगा सुन रहे टीचर अकाउंट करता मोबाइल पे नहीं सुन रहे हाँ, तो वीडियो ऑन कर दो तो दोस्त का ही बता रहा। ठीक है बेटा, विद इन द इलास्टिक लिमिट बेटा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, कोई बताओ? स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट E into your strain, y is equals to m into your x। x एक्सिस पे आप स्ट्रेन ले लो
और y एक्सिस पे आप स्ट्रेस ले लो, विल बी गेटिंग ए ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये स्लोप क्या देगा बेटा? Slope will give me what? Represented by m. That will give me what? Tan theta. Tan theta will give me capital E. Capital E is known as what for me? Modulus of elasticity. Very important graph beta. ठीक है? So stress within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. इसको हम लोग बोलते हैं elongation graph. Elongation graph as per NCERT. ठीक है ना? सो y इज इक्वल टू mx में m क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप। e इज रिप्रेजेंटिंग मी व्हाट बेटा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पार्ट ऑफ रिलेशन। मान के चलो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो, अगर मेरे पास कभी क्वेश्चन ग्राफ पे ऐसा दे दे, ऐसा एक ग्राफ है, यहाँ पर y एक्सिस पे अपने पास स्ट्रेस है और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे अपने पास स्ट्रेन है, और यहाँ पर ऐसा दो स्लोप्स दे रखा है, दिस इज योर a एंड दिस वन इज b। फर्स्ट वन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज and this one is making an angle of 30 degrees. अगर मैं पूछूं what is the Young's modulus of your A? What is Young's modulus of your A divided by Young's modulus of your B? चलो बताओ, कोई बता सकता है आंसर इसका? Young's modulus मतलब क्या बेटा? E ना बेटा, स्लोप क्या देगा अपने को? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, isn't it? यानी YA divided by Y of your B will be equal to how much for me? Tan theta of your A divided by tan theta of your B, isn't it? यानी that is equals to tan of your 60 degrees divided by tan of your 30 degrees. कितना आ रहा आंसर? कितना आ रहा? कितना है बेटा? आई बात समझ में सभी को? स्लोप वाला अगर मैं ग्राफ दे, इज आस्किंग द यंग्स मॉडुलस ऑफ योर ए डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ योर बी, तो क्या लिखना है आपने को? tan थीटा देखना है। सर इसमें अभी चाहे आपको लेंथ दो या ना दो, एरिया दो या ना दो, से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर एंगल है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन विल गिव मी y एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर tan theta. Young's modulus is directly proportional to your tan theta. So y1 by y2 is equals to tan theta 1 divided by tan theta 2. Clear है? चलो next application, application number 4. Very important for NEET again. Elongation of suspended wire due to its own weight, due to its own weight, due to its own weight. Elongation of your suspended wire due to its own weight. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। देखो मान के चलो मेरे पास एक वायर है ऐसा कुछ, और ये हैंग कर रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ, and it is hanging on its own weight, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा इस पे। तो अपने आप पे कोई भी वायर अगर 2-3 साल के अंदर अगर हैंग करते रहे तो वो थोड़ा इलास्टिक वजह से की वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। मान के चलो मैं एक छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ इसके अंदर जिसका विड्थ है dx और नीचे वाले पार्ट से ये डिस्टेंस हो गया x, यानी इसका मास भी बन जाएगा मेरे पास dm, isn't it? तो इसका एरिया कितना बन जाएगा बेटा? ये इज इक्वल्स टू पाई इंटू योर आर स्क्वायर रहेगा। दैट इज मेड अप ऑफ एन यंग्स मॉडुलस y और इसका डेंसिटी है मान के चलो रो। मान के चलो ऐसा एक वायर है जो हैंग करा हुआ है और उसको हैंग करके मैंने छोड़ दिया। कभी कभी अब ऐसा सिचुएशन होता है जैसे एक जेली मटेरियल लो और आपको रूफ ऑफ आप अपने क्लास के रूफ पे लगा दो, जैसा बबल गम वगैरह जैसा होता है, तो पहले तो वो गिरेगा नहीं, थोड़ी देर होने के बाद क्या हो जाएगा? टप्पल के नीचे गिर जाए, क्योंकि इट इज फॉलिंग ऑन इट्स ओन वेट, इजंट इट? और मैं भी कोई एक जेली सब्सटेंस लगा दो, जो जेली होती है ना, जैसे आप लोग चॉकलेट्स खाते हैं, जेली चॉकलेट्स लेके अगर आप लोग अपने रूफ पे लगा दो और देखो थोड़ी देर के बाद या मे भी 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वो पूरा सूख के अपने वेट की वजह से पूरा नीचे आने की कोशिश करेगा और नीचे गिर जाएगा।
तो वैसे वाला ही सिचुएशन, यहाँ पर एक वायर है जो हैंग करा हुआ है और वैसे ही सालों भर छोड़ दिया, तो बाद में पता चला कि जो वायर का इनिशियल लेंथ है उससे फाइनल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर एलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्लियर है? तो इसका पहले डायमेंशन लिख रहा हूं, देखो मान के चलो, L इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ, L is what for me? Initial length. Rho is equals to density of material of wire. Density of material of your wire. Capital Y is your what? Your Young's modulus. Young's modulus of your wire. और इसका मास कितना हो जाएगा बेटा? मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ इंटू योर रो, that is your mass of your wire. That is your mass of your wire, and A is equals to your area of cross section, area of your cross section. तो elongation का फॉर्मूला लिखो बेटा, elongation का फॉर्मूला स्मॉल एलिमेंट के लिए DE, that is equals to your force is equals to your dm into your, as m लिख सकते हो बेसिकली, so it is your dm into your extension कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, y is equals to your f into your l divided by a into e, तो e का फॉर्मूला हो जाएगा e is equals to f into your l divided by y into your a, इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूँ, फोर्स is equals to dm into your g, ठीक है ना, into l जो है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द स्मॉल एलिमेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू योर dx डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस हो जाएगा y into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ये। नाउ हाउ डू यू राइट द वैल्यू ऑफ dm बेटा, किसी को याद है? Cutted mass by your original mass will be equal to cutted length by your original length, यानी dm will be equal to, आप रोटेशन मैकेनिक्स में करे होंगे, m by your l into your dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक्सटेंशन को देखो, de is equals to your, और dm की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, m by l into your dx into your g into your dx, dx is nothing but the element, मैंने प्रॉब्लम में कितना लिया हुआ, x लिया हुआ, तो इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर लूं यहाँ पर, तो ये हो गया x, और यहाँ पर भी ये हो गया मेरे पास x। कटेड लेंथ, कितना लेंथ कट किया मैंने, x लेंथ कट किया हुआ है बेसिकली, isn't it? So that is your basic relation part of this one, divided by Young's modulus of the wire into your e, इसको भी मैं स्मॉल लेटर्स इसमें लिख लेता हूँ, so this will be equal to your g into your dx। So dm की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, dm की वैल्यू आ गई m by l into your x, ठीक है। सो यानी इसको भी यहाँ पर मैं काटूं और यहाँ पर क्या लिखूं मैं, x, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करो ऑन बोथ द साइड्स, बात समझ में आई? कटेड मास बाय ओरिजिनल मास इज इक्वल टू कटेड लेंथ, कितना लेंथ हम लोग कट कर रहे हैं, ए पार्ट वाला लेंथ अपन कट कर रहे हैं, ये पार्ट वाला कट आप लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटू x डिवाइडेड बाय योर l, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेट करो ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, सेकंड ईयर बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए डायरेक्टली रिजल्ट ही यूज है अपने को फाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए। इंटीग्रल ऑफ योर डी इज इक्वल्स टू, so this will be your integral of your m into your x into g into your dx divided by your y into your e, so extension is मान के चलो 0 से लेके e तक है, so integral of de will be equal to e, that is equals to, what are all constant in that one beta, can anyone tell me? M is a constant, g is a constant, y is a constant, e is also constant, clear hai? So this will become for me integral of your x into your dx, length of the wire is from 0 to मान के चलो l, so integral of x into dx is how much बेटा, किसी के पास फॉर्मूला याद है? Integral of x to the power of n into dx is how much for me? X n plus 1 divided by n plus 1, यानी integral of x to the power of 1 into dx will become how much for me? n 1 plus 1 divided by 1 plus 1, यानी ये हो गया x square divided by 2, तो एक्सटेंशन elongation हो गया मेरे पास mg divided by Young's modulus into your a into your x square divided by 2, limits will be 0 to your l, तो ये हो गया e is equals to your mg divided by 2ya into your upper limit minus lower limit 0 square l square minus of your 0 square, तो अल्टीमेटली आंसर क्या है एक्सटेंशन का, e is equals to your mg into your l square divided by 2 times of Young's modulus into your area of your cross section, क्लियर है? क्लियर?
कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है आपने को यहाँ पर अभी? डीएम की जगह मैंने एम बाई और यहाँ पर एल लिखना छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर भी एल है, उसके साथ यहाँ पर भी एक एल आएगा, क्योंकि देखो एम बाई एल है ना, बट एल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो डिवाइडेड बाई और एल, तो यहाँ पर भी एल आ जाएगा, यहाँ पर भी एल आ जाएगा, तो यहाँ पर भी एल आ जाएगा, एल और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो एलोंगेशन आ गया मेरे पास फॉर्मूला, ई इज इक्वल्स टू मास के अंदर एम जी इंटू योर एल डिवाइडेड बाई 2y इंटू योर यंग्स मॉडुलस। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। When a wire is been extending on its own wire, elongation in the wire is been calculated by the formula E is equals to your mg into your L divided by 2y into your E. अगर मान के चलो y में नहीं दिया, खाली लेंथ में दिया हुआ है, तो at that time what we can do? As we know that mass is equals to, मास का वैल्यू क्या दे रखा है, देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, मास इज इक्वल्स टू क्या है, ए इंटू एल इंटू योर रो, मान के चलो मास इज इक्वल्स टू योर ई लेंथ ए इंटू एल इंटू योर रो, तो एलोंगेशन कितना बन जाएगा, ई इज इक्वल्स टू एम के जगह ए एल इंटू रो इंटू जी इंटू योर एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई इंटू योर ए। तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है बेटा, एरिया और एरिया चले गया, एल और एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलोंगेशन का फॉर्मूला कितना बनेगा बेटा, ई इज इक्वल्स टू योर रो जी इंटू योर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ योर Young's modulus. So E is equals to your rho G into your square divided by 2 into your Y. Clear hai? This is your important formula you need to remember in the elongation of the wire in its own wire. ये derivation सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, लॉन्ग टर्म या सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए सिर्फ अपने को ये हेडिंग याद रखना है, elongation of the suspended wire due to its own weight, और इसके टर्मिनोलॉजीज याद रख के डायरेक्टली फॉर्मूले पे से पहुंच जाना है, E is equals to your mg into your L divided by 2y into your E, or else E is equals to rho g into your L square divided by 2 into your Y. बात खत्म, क्लियर है? अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल लो, अगर यही वायर को मैं अगर कोई वेट अटैच कर दूं, ये वायर है, अगर इसके साथ मैं कोई वेट अटैच कर रहा हूं जिसका मास है m, तो इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू m इंटू जी, ये इसका लेंथ है एलोंगेशन L, यंग्स मॉडुलस है इसका y, ठीक है ना, लेंथ है इसका t और इसका डेंसिटी है मान के चलो रो, तो देयरफॉर नेट एलोंगेशन इस पे कितना होगा बेटा, नेट एलोंगेशन कितना आएगा, E इज इक्वल्स टू एलोंगेशन ड्यू टू फोर्स आएगा प्लस एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट भी आएगा, ओन वेट मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला, सो E इज इक्वल्स टू एलोंगेशन ड्यू टू द फोर्स मतलब कितना बेटा, F into your L divided by your A into your Y plus elongation due to its own weight मतलब L square into density rho into G divided by 2 into your Young's modulus, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अगर खाली वायर ना होके उसके साथ अगर कोई वेट भी होता तो आपको उसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, along its own force, जो फोर्स आप लगा रहे हो ना वो फोर्स की वजह से जितना एलोंगेशन हो रहा वो एलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट को ऐड कर देना है, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दिस वन, सो दिस इज द एलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, यहाँ पर वेट भी है और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, देखो ये फोर्स की वजह से ही लग रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, E इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन ड्यू टू फोर्स लिखा है प्लस एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट भी लिखे, क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर? चलो बात समझ में आज की क्लास, कल की क्लास में हम लोग ग्राफ कर लेंगे और स्ट्रेन एनर्जी, एंड दैट विल बी आवर फाइनल क्लास रिलेटेड टू योर इलास्टिसिटी, एक ग्राफ का कांसेप्ट है, वो ग्राफ का कांसेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वर्किंग पे चले जाएंगे, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे तक हम लोग इस चैप्टर को फुल स्टॉप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक पे इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली हम लोग न्यूमेरिकल्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, इज इट क्लियर? डाउट है तो पूछ लो।
किसी को कुछ डाउट्स रहा है तो पूछ ले सकते हैं बेसिकली। नोट्स आप लोग पढ़ रहे हो ना बेटा सभी लोग? नोट्स वैसे भी मैं आप लोग को डिटेल में भेज भी रहा हूँ बेसिकली। आप नोट्स अगर रनिंग नोट्स पे नहीं लिख रहे हैं तो बात भी लिख लीजिए। आप सार नोट्स भेज रहे हैं बोल के आप लोग नोट्स मत लिखना मत बंद करिए। प्लीज ट्राई टू राइट द नोट्स ऑल्सो। और इसका रिकॉर्डिंग भी है, आपको कहीं पर कंफ्यूजन भी हो रहा है तो आप फिर क्लास की एज इट इज क्लास सुन सकते हो और जाके वहां पर अपना डाउट क्लैरिफाई करके फिर वापस भी आ सकते हो बेसिकली। ठीक है ना? वालेकुम अस्सलाम। बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत दिनों के बाद नहीं मुलाकात। हाँ सर। तो घर में अच्छा है बच्चा वगैरह? बस सब ठीक है सर, बच्चे बढ़िया। आज बच्चों को पूछ रहा था, आज की क्लास है जरा डाउट्स वगैरह कुछ रहे थे वो लोग क्लियरफाई कर लेंगे। डाउट्स बेटा ये कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं पूरे? पूरे फर्स्ट ईयर है हाल। अच्छा, सेकेंड ईयर के बच्चे कोई भी नहीं है? सेकेंड ईयर भी नहीं और लॉन्ग टर्म नहीं है, दोनों भी नहीं है, दोनों का बैच अलग है। इनको अलग चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बोला है ताकि इनकी स्पीड और उनकी स्पीड अलग-अलग हो जाए। हाँ 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 हाँ, ये लोग जरा इसलिए मैं हर चीज में डिराइव कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं बोल के डेरिवेशन पे जा रहा हूँ। अगर खाली लॉन्ग टर्म के बच्चे या सेकेंड ईयर के बच्चे होता ना एप्लीकेशन पे चले आ सकते थे सीधे। हर चीज का एप्लीकेशन पे डेरिवेशन करना पड़ रहा है इस पे बेसिकली। डाउट नहीं पूछ रहे, समझ में नहीं आता इनको, क्या पता नहीं क्या समझ रहे वही हैं। एक से दो बार वहां को भी मैं लोग पूछ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ बेसिकली सो दैट एक से दो बार अगर डाउट आया। अभी तो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया, आज से या कल से क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे इस पे, वो भी करना है। लेकिन बात करना सर, बच्चे क्लास वीडियो में क्या है कि वो लोग इंटरेक्ट ही नहीं हो रहे, ओपन करके बात नहीं कर रहे। वो लोग बात करें तो मालूम, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बच्चे बात कर रहे हैं, फिर दे आर एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग। फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी तक तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, दे आर नॉट जस्ट लिसनिंग एंड गोइंग ऑन वेलिस्टिकल। सर का है हाल? यस नो इतनी बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही। हाँ बेटा, थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, किसी को उठा के पूछेंगे। यहाँ क्लास में टीचर भी बैठे हुए थे लेक्चरर। अच्छा हाँ हाँ पहले किसी एक स्टूडेंट्स को उठा के उसका सॉल्व भी करवाने के लिए कहेंगे। अच्छा यहाँ से कैमरा जो है इनवर्स कैमरा लगा देंगे हाँ ताकि बता सके आपको कैमरे पे। हाँ, ये बेटर रहेगा बेसिकली, ये इंटरेक्टिव रहे तो भी अभी बेटर रहता है। हम लोग वीडियोस भी ऐसा ही क्लास करते हैं कि टीचर भी वीडियो ऑन करके पढ़ाए, बच्चे भी पूरे वीडियोस ऑन करके रहें तो और इंटरेक्शन बहुत क्लियर हो जाएगा बेसिकली। बच्चे फायदा लेना, इतना जबरदस्त फैकल्टी से आपका अगर फायदा नहीं ले तो आपका नसीब खराब। हाँ बच्चे समझ रहे हो? ओके गर्ल्स देखो बच्चे, हमारे बच्चे में इंट्रोडक्शन कराए सब लोगों को। तो किसी को देखा ही नहीं मैं अब तक, बच्चे भी कोई दिखे ही नहीं। वीडियो कल तक वीडियो ऑन ही नहीं करे थे बच्चे तो। लाइट्स डाल बच्चों को इंट्रोड्यूस कराओ सामने आके, तो बच्चों का इंट्रोडक्शन ले सर। इनका पिछला क्या रिकॉर्ड है। हाँ सामने आना, कैमरा के सामने अपने स्क्रीन शेयर सामने का, ठीक है? दैट सामने के इंट्रोडक्शन दिखता है, उसके अपना इंट्रोडक्शन दे, सामने डायरेक्ट कैमरा लगाए, सामने से हां Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, myself Saklan. क्लास सुन रहे हो तुम स्टार्टिंग से? Yes sir. क्लास नोट्स घर जाके पढ़ रहे हो? हाँ सर, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ सर कंप्लीट है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो या मेरे को पिन करके पूछ सकते हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी फ्रेंडली विद दैट वन। आप मुझे टोक सकते हो, यू कैन आस्क मी डाउट, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया फिर से एक बार बतलाइए, इजंट इट? यू कैन आस्क मी। अगर आप जैसा मेहनत करना शुरू करोगे ना तो उसके हिसाब से आपका टीचर भी आपके पीछे मेहनत करते रहेंगे बेसिकली, है कि नहीं? बट डोंट सिट मम इन द क्लास। आप लोग अपने फ्रेंड से जितना भी हो रहा ना, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, चलो भैया टीचर पढ़ाया तो थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो नेक्स्ट की क्लास में या नेक्स्ट डे जब आ रहे हो ना तो एक बार पूछ लेना, सर हम लोग इसमें यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, एक बार क्लियर कर लें, तो वो हम लोग डिस्कस कर ले सकते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत है। और रिकॉर्डिंग भी है हर चीज का, तो आप घर बैठे भी थोड़ा बहुत फिर एक बार रिवीजन भी कर ले सकते हैं, अपनी नोट्स भी बना लो। और नोट्स बनाना जरूरी है, देखो बेटा नोट्स बनाना जरूरी है। और इस टॉपिक में से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है फॉर द नीट एग्जामिनेशन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। उसीलिए मैं आप लोग को पढ़ाते खुद भी लास्ट में आप लोग को और अंडरलाइन कर रहा हूँ सो दैट आप लोग को फॉर्मूला याद रहे कि पढ़ते से टाइम पे ये अपने को फॉर्मूला लगाना है व्हेन डूइंग द न्यूमेरिकल्स पार्ट रिलेशन। ठीक है? कुछ भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और लेवल पे पढ़ाना है, यू प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट वन। क्योंकि अभी मुझे लाइवली आप बच्चों का इंटरेक्शन में नहीं मालूम कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। कभी किसी को हाई हो जाता, कभी किसी के लिए लो हो जाता, कभी किसी के लिए स्लो हो जाता, किसी के लिए फास्ट हो जाता है। तो कभी ऐसा हो लग रहा है ना तो आप लोग क्लास में एकदम बोल दिया कर लीजिए, क्योंकि कम बच्चे भी है तो इंटरेक्शन भी आराम से हो जाता है, आप लोग वीडियो ऑन कर लेके बात कर ले सकते हैं। ठीक है? और कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
क्या नाम है? मैं सुना। क्लास सुने हो इलास्टिसिटी की पूरी? कुछ याद है इलास्टिसिटी? यस सर। क्या याद है बोलो, कुछ एक दो फॉर्मूलेस जो आपको याद है इलास्टिसिटी में। Elongation formula. हाँ तो कुछ एक एक फॉर्मूला बता दो। Elongation E is equals to हम्म F into L by हम्म area into Young's modulus. वेरी गुड, एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। अच्छा है, पढ़ रहे हो सब बोले तो, वेरी गुड। ओके चल, समझ में आ रही है ना क्लास तो? Yes sir. ओके चल। तो घर से मिला अभी आपके सामने घर कोई इंटरेक्ट ही नहीं हो रहे जूनियर्स में तो। सब बदल के लाइट है सर। नहीं कहते देखो। एक नहीं आ रहा है बस आप कुछ नहीं जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नाम बोलो पहले अपना कैमरा आपके फादर का एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो उसके। कहीं कितना शर्मा रहे हो बेसिकली। आओ मां आ जाओ सामने, कुछ भी नहीं है, जरा आ जाओ, बोले आ जाओ, आ जाओ, ये ताजो नहीं सकता। ये दो सामने क्लास में तो सर रहते ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत बेटा? क्या नाम है? अजनी सर। क्लास समझ में आ रही कुछ? यस सर। सही बोलो, हाँ सर। थोड़ी थोड़ी नहीं? घर जाके पढ़ रहे हो इलास्टिसिटी की नोट्स वगैरह कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हाँ बेटा, पढ़े सर। डॉक्टर बनना है कि नहीं? यस सर। कितना सीरियस डॉक्टर बनना है? हैप्रोन स्टेथोस्कोप वगैरह है कि नहीं है दिमाग में कि मुझे डॉक्टर बनना है, हैप्रोन स्टेथोस्कोप लेके फिरना है, हॉस्पिटल्स विजिट करना है? ऐसा कुछ जुनून है नहीं है? नहीं खाली पढ़ रहे हो, चले जा रहे हो, खेलना कूदना? क्या बेटा, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हो कि नहीं? यस सर। मेहनत तो कर रहे हो उसके हिसाब से? यस सर। मेहनत करो बेटा, कुछ भी है यू कैन ओपनली आस्क मी, आपके टीचर्स भी है, मैं भी रेगुलरली विजिट करते रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिला तो आजा आजा करूंगा। आई ऑल्सो श्योरली मीट यू वंस इन सम टाइम इन पर्सनली भी हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी भी तैयारी करो, एक जुनून बनाओ और एक तरीका बनाओ। कुछ अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अपने टीचर से बात करो। वैसे भी आई एम ऑल्सो देयर ऑन द ऑनलाइन, कभी भी आप लोग से बात करना है, कुछ सजेशन लेना है, यू कैन आस्क द सर, वी कैन हैव ए पर्सनल इंटरेक्शन ऑन जूम पे, हम लोग बैठ के भी एक बार बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी ये फर्स्ट ईयर में अगर प्लान नहीं करोगे ना तो बाद में सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट फिजिक्स के एक ना 4-5-6 चैप्टर्स इतने परफेक्ट होना कि आप लोग को कि नेक्स्ट ईयर में टेंशन नहीं होना कि चलो भाई फर्स्ट ईयर में हम इतने सारे क्वेश्चंस करके आ सकते हैं। क्योंकि 100 मार्क्स का भी अगर अपन प्लान करके चले ना तो दैट विल गिव यू गुड स्कोर इन योर नीट, ठीक है ना? और क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग प्लीज पर्सनली पिन करके आप पूछिए कर लीजिए, डोंट ट्राई टू सिट मम इन द क्लास, कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना? यस सर। ओके चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत बेटा? व्हाट्स योर नेम? हाँ सर। क्लास समझ में आ रही है? हाँ सर। 10th में कितने हैं स्कोर? 74। 74 नहीं पढ़े 10th में ऐसा बोले तो? सर एग्जाम डलवा था ना सर, कैंसिल हो गया। अच्छा, अभी पढ़ रहे हो, स्टार्ट किया है प्रिपरेशन? हाँ सर। कितना सीरियस है? खाली पढ़ रहे हो, आ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, पढ़ ले रहे हो, आराम से चले जा रहे हो? नहीं बेटा, कितना सीरियस हो? डॉक्टर बनना है नहीं खाली इंटरमीडिएट पास करके जाना है, बोर्ड का पास करके जाना है? पता है सर। पक्का? पक्का बनना है ना? यस सर। मेहनत करना शुरू करो, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लीज ट्राई टू पर्सनली इंटरेक्ट विद मी, आई विल ट्राई टू श्योरली हेल्प यू आउट, ठीक है? ओके चल, ओके जज़ाकल्लाह। वन लास्ट गर्ल है सर, बानपुरा से मिलवा के 3 2 5 नंबर से मिले आप। एक लड़की है, हाइट कम है, कैमरा में नहीं आती, आई है कैमरा के सामने ना है कैमरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, व्हाट इज योर गुड नेम बेटा? आवाज सुनाई नहीं दे रही। अहमद रब्बी सर। ओके, क्लास समझ में आ रही है आपको? यस सर। नोट्स वगैरह लिख रहे हो? नहीं लिखी अभी नोट्स? नोट्स भेज रहा हूँ मैं, रोज आप लोग को नोट्स लिखना है, अपने को क्वेश्चन सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना है, कोई भी एक बुक से वर्किंग भी करना है, और पीवाईक्यूज कंपलसरी करना है बेटा।
जैसे जो भी टॉपिक चल रहा है ना प्रीवियस के क्वेश्चन में समझना है कि यार ये टॉपिक में से 2022 में कैसा क्वेश्चन आया, 20 में कैसा आया, 21 में कैसा आया, क्या वेटेज है, कितना लेवल तक है, कौन से लेवल तक है, ये पूरे भी एनालाइज करते रहना आप लोग, ठीक है ना। और क्लास में पढ़ाते समय पे कोई भी कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, यू पर्सनली ट्राई टू पिंग मी इन द ग्रुप ऑल्सो, ग्रुप के अंदर भी मेरा नंबर है, यू कैन पर्सनली, आप लोग ग्रुप के अंदर भी आप लोग अपने डाउट्स डाल सकते हो, यू कैन इंटरेक्ट विद मी इन दैट वन ऑल्सो। और क्लास पढ़ाते को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे पूछ लिया जी कर लीजिए, बट मेक श्योर दैट आप लोग नोट जरूर लिखिए। मैं आप लोग को भेज रहा हूँ नोट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नोट्स नहीं लिखना, पूरा जितना भी मैंने लेक्चर 4 या टुडेज माय लेक्चर 5 ऑन द इलास्टिसिटी को पूरा का पूरा नोट्स आप लोग लिखना, डाउट्स क्लैरिफिकेशन करना, प्रॉब्लम्स करते से टाइम पे आप लोग को फॉर्मलेस बोलना, ठीक है ना। और समझ में नहीं आ रहा तो टीचर से पर्सनली बात करो, आपके पास वहां पर भी लोकल टीचर से पहले उनसे इंटरेक्शन करो, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो प्लीज ट्राई टू आस्क विद मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। ओके चलो, taking care of the girls students. ओके, गुड इवनिंग मैडम। सब्जेक्ट है खाली इंचार्ज मैडम, Sir, no subject, sir. Organic. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके ओके फाइन फाइन। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम, कौन सा सब्जेक्ट सर? Actually, I am reading physics, sir. ओके वेरी गुड, ओके कब से पढ़ा रहे हो सर? Actually, sir, from 5 years I am teaching physics, sir. ओके But here I joined before 3 months to ITL. ओके फाइन। देखो सर, आप साथ में क्लास में भी बैठते होंगे ना, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो रहा, कुछ भी हो रहा तो आप भी पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कभी कभी बच्चे और लोग कभी कर देते हैं, अगर आप क्लास में होगे ना तो बच्चों को भी थोड़ा क्लैरिटी और समझ में आ जाएगा, तो और Yes. भी आप भी जरा बेटर भी समझा सकते हो कि सर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो बोल के, क्योंकि थोड़े बच्चे एकदम बहुत स्लो होते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, तो वैसे वाले टाइम पे आप थोड़ा उन लोगों को हेल्प आउट कर दो, बूस्ट कर दोगे ना तो इट विल बी श्योरली बी हेल्पफुल फॉर अस। अगर Right, मुझे आप लोग बोलते हैं सर आप थोड़ा हाई लेवल पे भी चले जाओ बोलो तो बच्चों की अगर एबिलिटी है तो प्लीज लेट मी नो सर, आई विल श्योरली गो अलोंग विद दैट वन सो दैट बच्चों का भी यूज हो सके बेसिकली। लेकिन एटलीस्ट आप देखिए कि जो भी चैप्टर हो जा रहा है ना वो बच्चे उस चैप्टर का पीवाईक्यूज कंपलसरी करें, पीवाईक्यूज कंपलसरी 2-3 बार करना चाहिए, और एक 50 प्रॉब्लम आप ऐसे सेलेक्ट करो कि बच्चा ये ना इलास्टिसिटी में ऐसा अगर 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दिया कर दूंगा कि ये मॉडल बच्चा कंपलसरी किसी हाल में भी रात के 2 बजे भी अगर उठे ना तो इसको इसका आंसर बोलना चाहिए, वैसे 50 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको बना लेना चाहिए, और बच्चे को रिपीटेडली वही करा दिए, इससे वाले बच्चों को बहुत काफी, और पीवाईक्यूज कर लिए तो 100 क्वेश्चन यही हो गए। इलास्टिसिटी में 150 क्वेश्चंस आप दे दीजिए, 40 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, तो 70-80 क्वेश्चंस तो आपको आराम से ऐसे ही मिल जाएंगे। 70-80 बेस्ट क्वेश्चंस आप इलास्टिसिटी में करा रहे हो, रिपीटेडली करा रहे हो, काफी है, पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेवल 3 लेवल 4 तो आप छीने की जरूरत ही नहीं है अभी नीट के एग्जाम के हिसाब से, लेवल 1 लेवल 2 ही आप आराम से अच्छी से जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना उसको आप थोड़ा बहुत वर्किंग करा दीजिए बच्चों को। अगर बच्चों का ही कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जरा हेल्प आउट कर दीजिए लाइव क्लास में, अगर आपको भी और बच्चे का भी नहीं बोलते, अगर आपको भी कुछ लगता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प इट आउट एट दैट टाइम और स्टेप बेसिकली। Yes, sir. ओके सर, थैंक यू सर, दिस वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। ठीक है सर, ओके सर, जज़ाकल्लाह।